Hello everyone, welcome to Generation Somewhere. So today what we'll be discussing is we'll be discussing about choosing the right idols and why it matters so much in our lives. We live in a world where selected selected PDF matters a lot to us, and based on that selected PDF we start living our lives. Every year we have multiple exams that are being conducted in our country, and whoever gets selected, we start living our lives based on the kind of lives that those people have lived. We start buying their pens, we start following their strategies, we start following their routines, we copy their lives. We do that because we choose them as our idols. But the difference between choosing an idol and choosing a success story is different. Success and significance are two different things, two different words. We run after success, we are not running after significance. When we are choosing someone who's achieved something in their life, say he or she has cleared an exam and made it to a certain list, they have done that for themselves and their families. They have achieved success, they have not achieved significance. Now what is success and what is significance? Success is when you do something for your own self, for the people around you, to uplift their lives and your life. You do that, and that is called, and you achieve something great while doing that. It is called success. But significance is when you think about others, other people who are not related to you. When you start thinking about them, that is when we start, manifesting something significant. So understand or try to understand the difference between success and significance, a success story and a significant individual. So we should not be running after success stories, because every year and after every exam, the success stories keep on changing. So how many pens are we going to buy? How many strategies are we going to follow? How many routines are we going to follow? So rather than running after success stories, we should be running after significance. And how can we do that? That is what we'll be discussing. And I'll be sharing few of my tips how we can do that. So let's start. Now when I say success and significance, I'll explain what these two words mean. I said that we are diluting both of these words क्योंकि हम सक्सेसफुल पीपल को अपने आइडल चूज कर लेते हैं rather than choosing significant people as our idols. सक्सेसफुल पीपल कौन है? हम लोग ऐसे we are part of such a generation where we idolize the people in the selected PDF. Selected PDF वाले जो लोग हैं, हम उनको अपने आइडल चूज कर लेते हैं. अब सिलेक्टेड पीडीएफ में जो लोग हैं, उन्होंने सक्सेस अचीव किया होता है इन वेरियस एग्जाम्स. अब उन्होंने सिर्फ उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया अपने आप को, या पूरी जिंदगी लगा दी एक एग्जाम के पीछे और उनको सक्सेस मिल गया. और हम क्या करते हैं, हम उनको अपना आइडल चूज कर लेते हैं और वी स्टार्ट लिविंग देयर लाइव्स. हम अपने जीवन नहीं जीते, हम उनकी तरह जीने लग जाते हैं अपने जीवन. सक्सेस इज अ प्राइवेट ट्रॉफी, सिग्निफिकेंस इज अ पब्लिक ब्रिज. सक्सेस जो मैंने अपने लिए कमाया, सिग्निफिकेंस जो मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं या फिर करने वाला हूं, दैट इज सिग्निफिकेंस. So we should be choosing the people who are significant, not the people who are successful. Okay. Now we'll discuss more about it along the video.
Okay, so stay with me and keep watching. Let's try to understand the difference between success and significance with a very local example. We've all heard about Dr. B.R. Ambedkar. Now, when we talk about him or when we remember him, we don't remember him for his degrees, the degrees that he's earned from LSE and Columbia. Rather, we talk about his contribution in our country and our country's constitution. Now, this difference is what can be taken as the meaning of significance. उनको क्लासरूम के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। उनको बोला जाता था कि भाई तुम बाहर बैठो, यहाँ पे सब ऊंची जाति के लोग बैठेंगे, तुम नीची जाति के हो, तुम बाहर बैठो। पानी नहीं पीने दिया जाता था। उनको बोला जाता था कि पानी अपना घर से लेके आओ, ये पानी बाकी सब लोगों के लिए है, ऊंची जाति वालों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। उनको ग्राउंड में झाड़ू लगाने के लिए बोला जाता था, क्योंकि वो नीचू जाति के हैं, तो झाड़ू लगाना होगा, जाओ झाड़ू लगाओ। बट इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ दिस, उनके मन में बदले की भाव नहीं थी। He did not seek revenge. Rather, उन्होंने ये सोचा कि अगर लोग मुझे भाव नहीं दे रहे, लोग मुझे नीची जाति का बोल रहे हैं, या मैं नीची जाति का हूं, तो इसलिए मुझे बाकी लोगों के साथ बैठने नहीं दे रहे, पानी नहीं पीने दे रहे हैं, मेरी आवाज को दबा रहे हैं, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे कि मैं उनके सामने रेलेवेंट हो जाऊं, उनके सामने कुछ बन जाऊं, ताकि मेरी आवाज भी सुनाई दे, मेरी आवाज भी सुने लोग। That's when he started seeking knowledge. He started seeking out for excellence. That is why his degrees don't matter. He didn't pursue all of those degrees for just to be, just to clear an exam or just to be something. उनको कोई पोस्ट नहीं चाहिए, उनको कोई रुतबा नहीं चाहिए था, उनको बस चाहिए था कि मैं नॉलेज लूं, एजुकेटेड बनूं, अगर मुझे कोई पोस्ट मिल रहा है तो मिले, बट व्हाट आई डू आफ्टर दैट, दैट इज व्हाट शुड मैटर. We should try to be significant in our country. We should try to help others. एक नौकरी लेके बैठ गया मैं, उसके बाद मैं अपनी कमाई कर रहा हूँ, कमाई पे जी रहा हूँ, मेरे घर वाले जी रहे हैं. I am living a better life than I was previously. Is this all? मतलब हमको एक ही जीवन मिलता है, नौकरी करने के लिए आए हैं बस. हाँ भाई, जीवन का लक्ष्य क्या है? नौकरी करना है. नौकरी करके फिर 60 साल 65 साल तक नौकरी करेंगे, फिर रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर 10-20 साल में फिर मर जाना है, फिर ऊपर चले जाना है. फिर क्या मतलब, क्या किया हमने लाइफ के साथ? व्हाट हैव वी डन विद आवर लाइव्स? बस यही मतलब नौकरी करके चले जाना है और कुछ नहीं करना है. एंड व्हाई दिस मेंटेलिटी? बिकॉज वी हैव चोजन द रॉन्ग आइडल्स. हम उनको चूज कर रहे हैं जो किसी नौकरी में जिनको सक्सेस मिला है. एक आदमी जिसने सिर्फ लाइफ में कुछ नहीं किया, जिसने पढ़ाई की है, एक नौकरी मिला है उसको, हम उसको अपना आइडल चूज कर ले रहे हैं कि हाँ भाई ये तो बढ़िया बंदा है, इसने नौकरी पा ली है भाई, सरकारी नौकरी, ये अपना आइडल. यही मतलब यही करना है. इसीलिए तो भाई आईआईटी के लोग, आईआईटी एनआईटी के लोग, मतलब people commit suicide, people die because they are not able to clear the joint entrance exam.
And out of all of those people, who are not able to, clear the exam, very few lucky make it to the IITs and the NITs. और फिर वो क्या करते हैं, NIT IIT में जाके पढ़ाई करके आ रहे हैं, आके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ जाते हैं. भाई मतलब क्या फायदा फिर, क्या फायदा. IIT प्रीमियर इंस्टीट्यूट है देश का, NIT प्रीमियर इंस्टीट्यूट है देश का. प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो एंड यू आर वेस्टिंग योर डिग्री, यू आर सिटिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स. सरकारी नौकरी के लिए बैठ जा रहे हो, तो फायदा क्या है 4 साल देने का IIT में, NIT में. इंडिया इज लैकिंग इन इनोवेशन. व्हाई? दिस इज द रीजन व्हाई. हम लोगों ने ब्यूरोक्रेसी को इतना ग्लैमराइज कर दिया है, हमको लगता है कि भाई यही है बस, IAS बनना है, IPS बनना है या स्टेट सिविल सर्वेंट बनना है, बस यही है जिंदगी में, और कुछ नहीं है. चाइना वाइना में जाओ, देखो भाई स्कूल के बच्चे इनोवेशन कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे. और हमारे यहाँ पे स्कूल के बच्चे क्या कर रहे हैं, साइंस प्रोजेक्ट के नाम पे वोल्केनो वाला वो जो लावा नहीं है वो बना रहे हैं. ये है इनोवेशन हमारे इधर में. क्योंकि घर वालों ने बोल दिया है बेटा स्कूल पास होना है, कॉलेज में जाना है, उसके बाद सरकारी नौकरी करनी है. पापा कर रहे हैं, बेटा भी करेगा, बेटे का बेटा भी करेगा, यही चलेगा. नौकरी में कितने लोग देते हैं भाई, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख. यूपीएससी में तो 10 लाख लोग देते हैं. सक्सेसफुल कितने होते हैं, 1000, 1000. व्हाट अबाउट द पीपल हु डिडंट सक्सीड, व्हाट अबाउट देम, उनका क्या? वो अगले साल फिर ट्राई करेंगे, फिर नहीं होगा, फिर उसके अगले साल ट्राई करेंगे, ट्राई ही करते रहेंगे. क्यों? क्योंकि दिमाग में घुस गया है कि भाई यही है, हमको अगर सिग्निफिकेंट होना है, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी लाल बत्ती वाली नौकरी, ठीक है, जिसमें रुतबा हो, नाम हो. अरे उसके बाद क्या, उसके बाद का क्या, व्हाट आफ्टर दैट? वी हैव ऑल सीन द रीसेंट केस ऑफ दैट करप्शन RAS officer Meena, I forget her name. She was also the idol of many people. She must have been the idol of many people. And this is not an isolated case. ऐसे केस बहुत सारे हैं, बथेरे हैं. मैं आपको लिस्ट दे दूंगा इस वीडियो में. बहुत सारे हैं जिन्होंने ये करप्शन के केसेस में, वो भी लिस्ट में थे, किसी न किसी लिस्ट में. उनको भी आइडल माना होगा किसी न किसी ने. अब क्या, उनके आइडल ने करप्शन किया, अब वो भी करेंगे. आइडल है भाई, आइडल मान लिया उनको, तो करप्शन वही वो करती है करप्शन, अब हम भी करेंगे करप्शन, हमने तो आइडल माना है. तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न टू चूज आवर आइडल्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज. And it is not just the responsibility of the person who's choosing the idol, also people around him, his elders. उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई बताओ, उनको बताओ. जीवन में नौकरी करके चले जाना वही है, वो अहमियत नहीं है भाई, उसकी कोई अहमियत नहीं है. Until you start contributing. एक ही जीवन है भाई, वरना तुमको इंसान क्यों बनाया, तुमको कोई और जानवर बनाए थे भाई, इंसान क्यों बनाया तुमको? कुछ करने के लिए बनाया होगा, कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए बनाया होगा. तो फाइंड पीपल हु हैव डन समथिंग इन लाइफ, हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन अदर्स लाइफ, हु हैव डन समथिंग इन द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी. चूज दोज पीपल एज योर आइडल्स. सरकारी नौकरी वाले नहीं, समझ रहे हो? So if you have been throughout in this video, and if you like what I said, please drop a like and comment
कमेंट योर आइडल. आई वॉन्ट टू नो हु यू हैव चोजन एज योर आइडल. देखते हैं भाई किनको चूज किया अपने आइडल. चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.